Welcome to the Bestseller Club series. This is Som Bartla, author of 20 plus books at Amazon and founder of Author Freedom Hub, which is a community of aspiring authors. In this series, we meet with the authors who join the community, write the book, publish the book, and take it to bestseller level. And today we have with us Seema Sharma from Dehradun. Welcome, Seema, to the show. Thank you, Samsa. How are you? I'm doing great. Thank you so much for being here. So, Yeah, it's those who nice are to listening, always, yeah, yes, sure. it's always nice to be on this platform because I have been watching so many people. They have come on this platform, so I was waiting for my turn when I will Wonderful, wonderful, come. wonderful. Great, Yes, great. So so those who are nice. watching for the first time, I ask you to subscribe to the channel, hit the notification bell so that you could get a lot of notification for all the future interviews. And today's interview is going to be special because Seema Sharma is educationist. From last 20 years, she has experience of teaching computer. She's MCA, and she's also now she's running her own kindergarten school. And she has traveled a lot in India, stationed at a lot of places. So she has a lot of experiences, and being a sensitive person, she has come out with a wonderful book called Purani Razai. पुरानी This रजाई is a Hindi ऐसा book, सो Hindi poetry book. So Seema will be telling all of you what kind of feelings go through the mind of people when they have relationship in the family, and how the close knit families uh, feel and behave, and all this stuff is covered in this interview. So all of you, please pay attention. Now I'm just switching to Seema. Welcome, Seema, to the show once again, and let's start थैंक the यू सर. discussion विद योर प्रिसाइज बैकग्राउंड. अभी क्योंकि आपने किताब हिंदी में लिखा है, पुरानी रजाई हिंदी पोइट्री बुक, सो इस इंटरव्यू को हम लोग करेंगे इंग्लिश और हिंदी मिक्स करेंगे, जैसे कंफर्टेबल फाइन. कंफर्टेबल होगा वैसे करेंगे. तो या व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद योर ब्रीफ बैकग्राउंड एंड व्हाट वाज योर लाइफ जर्नी, एंड उसके बाद आप अंत में आपने एक किताब लिखा है, तो उस जर्नी को आप बताइए शुरू से, सो दैट की पीपल कैन लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड योर जर्नी. ओवर टू यू. यस, एज यू नो दैट आई एम एन एजुकेशनिस्ट एंड लास्ट 20 years से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ. And we have been to places, like my husband, Mr. Digvijay Gaurav. He is the main uh, motivating drive for this book which we are discussing right now. So we have been places to places. We met many people, and they inspired me on some point. And you are talking about emotions, na? Like my book is Purani Rajai Ehsason Ka Safar. Right. Ehsas means emotions. Everybody Yes. is having emotions. We all are tied with emotions, deep emotions, and emotions are the only thing which describe any person, Hmm. his Hmm. or her personality, Hmm. like how we talk to a person, how we communicate, and how we behave Hmm. with each Correct. other. Hmm. So these all are about sanskar is different thing, but emotions, no? On a personal level, how we, because sometimes there is an unknown person and Hmm. we simply ignore that fellow. We do not know Hmm. whether to talk to, we do not feel Hmm. like talking to him or approach to him or her. Hmm. Hmm. तो मेरा भी सफर वैसा ही रहा कि Hmm. मैंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया लाइफ के अंदर, Hmm. और देखा कि लोगों के इमोशंस जो हैं वो जो रियल इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं करते. Hmm. एक्सप्रेस नहीं करते तो देर इज लिटिल बिट ऑफ पेन इनसाइड Hmm. एवरीबॉडी. Correct. कहना Correct. कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, और सारा मामला वहीं खराब हो जाता है. Hmm. 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 तो ये बुक जब मैंने लिखी, ये लॉकडाउन के टाइम मुझे बहुत ज्यादा इसकी जरूरत महसूस हुई, जब पूरी दुनिया एक तरह से कैद हो गई थी. Hmm. और सब लोगों को एक इम्पॉर्टेंट शायद समझ में आई होगी उस टाइम की रिश्तों की अहमियत जो होती है. Ah, रिश्ते correct. आपके सिर्फ हस्बैंड वाइफ के या आपका कोई पर्सन, लविंग पर्सन के ही नहीं होते. माँ बच्चे का रिश्ता सबसे पहला होता है. जी जी जी. एंड आफ्टर दैट आपके बहुत सारे रिश्ते होते हैं, फादर के साथ, ब्रदर के साथ, योर इन Hmm. लॉज, योर पेरेंट्स, योर Hmm. फ्रेंड्स, Hmm. योर सिबलिंग्स, एंड सो मैनी. Hmm. सो हम लोग जिन रिश्तों के साथ बंधे हुए हैं, उन रिश्तों को निभाने के लिए एक तरह की समझ जी तो चाहिए, जी लेकिन उसके लिए एक पैशन भी चाहिए. तो मैंने जी. अपनी पोएट्री के जरिए उन पैशंस को, उन एहसासों को जस्ट शो करने का एक रखा है माध्यम, कि लोगों को समझ में आए कि सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है इंसान को, वो रिश्तों की होती है, जी. प्यार की होती है, अपनेपन की होती है. बाकी सभी चीजें दूसरी तरफ रहती हैं. बिल्कुल, आपकी किताब दिखाई जाए दर्शकों को. जी बिल्कुल, दिखाइए. लीजिए, पुरानी रजाई एहसासों का सफर. सो दिस इज अ वंडरफुल बुक, रीडर्स एंड वॉचर्स ऑफ दिस वीडियो. वंडरफुल बुक. बहुत अच्छी कविताएं लिखी गई हैं इसके अंदर, जो अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें यू विल फील वेरी टच्ड बाय दिस बुक. सो कॉन्ग्रेचुलेशन सीमा, यू, आपने किताब लिखा, थैंक यू. पब्लिश करा, और इसको
इंडिया में बेस्ट सेलर लेवल पे लेके गए। तो जी। आपकी ये पहली किताब है या इससे पहले भी आप कुछ किताबें लिख रहे थे और आपने पहली किताब में अपना So बेस्ट सेलर, या बताइए। आई हैव बीन इनटू राइटिंग सिंस मैनी इयर्स, बट हम्म। मैंने कभी भी कोई बुक अपनी पब्लिश, इससे पहले मैं कुछ बुक्स लिख चुकी हूँ, जी। बट मैंने पब्लिश नहीं किया था। हम्म। Then I found this platform, so I just was thinking ki whether I will be able to judge myself once again, because I'm a person who believes in never give up. So हाँ। I tried my own skills to be tested. हम्म। Ki within 30 days or less than 30 days, will I be able to publish this book on my own? Number one. हम्म। हम्म। एंड नंबर टू, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन थोड़ा लिखना आसान रहता है कि हम्म। आपके पास एक सेट ऑफ पैटर्न रहता है कि आपको ये लिखना है, जी। बट पोएट्री इज अ डिफरेंट थिंग. पोएट्री जी। में यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, सर्टेन काइंड ऑफ मूड एंड सर्टेन काइंड ऑफ इमोशंस, देन हम्म। ओनली यू कैन राइट, हम्म। because these are your feelings. It's हम्म। not ki something from here and there you can grab and you हम्म। just add it on your writings. हम्म। Okay, so you need certain kind of emotions. So it was a difficult thing पोइट्री तो for me. अल्टीमेट टाइप ऑफ राइटिंग, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ राइटिंग है, बिकॉज आपको सारे Yes, अनुभवों को, एहसासों को, उसको बिल्कुल yes, yes, बांध के पेन डाउन रखना करना पड़ता है होता कि है, आप यस, कम से बांधना कम पड़ता है. शब्दों में उसको एक्सप्रेस कर पाए। फिक्शन गागर में, में नॉन सागर फिक्शन। भरना होता है. जी जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गागर में सागर, सही बोला गागर में आपने। सागर भरना होता है, क्योंकि जी। शब्द आपको बहुत एहतियात से चूज करने पड़ते हैं, जी। और शब्दों का सही अर्थ जो आपने कहा वो आपके जो पाठक हैं, जो रीडर्स हैं, उन हम्म। तक करेक्टली पहुंचना चाहिए. वो हम्म। संदेश वैसा ही, तभी एक पोएट्री कहिए या राइटिंग कहिए, वो जी। कहीं ना कहीं सार्थक हो पाती है. तो ऐसा जी। मेरा मानना है. हम्म। और दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा इसमें, मैं एक टीचर तो हुई, एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हूँ. मैं एक, मतलब टीचर क्या होता है, टीचर इज नॉट ओनली टीचिंग ऑलवेज, ही इज अ कांस्टेंट लर्नर बेसिकली. तो हम लोग सब लर्नर्स ही हैं, सीखते जी। हैं जीवन के हर पहलू में, हर पड़ाव में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं. तो जी। मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, वो भी हम्म। पोएट्री जैसा जिनर मैंने चूज किया कि हम्म। टफेस्ट एंड रेयरेस्ट है, वो भी हिंदी पोएट्री. हम्म। सो आई ट्राइड कि ओके, लेट्स ट्राई दिस, कि अगर होगा तो होगा. देखते हैं इसको. देन आई हम्म। ट्राइड एंड आई ज्वाइंड इन लेट दिसंबर. हम्म। And for 1 month, like in January, complete January, I was totally clueless. I was just observing your AFH group हम्म। community, हम्म। their discussions, and whatever the things they were telling in WICC meetings, I हम्म। was observing and jotting down all the points. राइट। Like your course, मैंने सब note किया, एक एक point मैंने note किया. Then मैंने एक target set किया, like in Feb में मैंने कहा इसको मुझे करना है. एंड 8th ऑफ मार्च, हम्म। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उस दिन मुझे इसको लॉन्च करना है एनी हाउ. हम्म। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड आई हैड गॉन थ्रू मेनी हेल्थ इश्यूज ऑल्सो. ओके। तो इट वाज, हाँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल लग रहा था कि मैं शायद ये कर ही नहीं पाऊंगी, हम्म। हम्म। होगा ही हम्म। नहीं मुझसे. हम्म। बहुत डिफिकल्ट लग रहा था. हम्म। लेकिन मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड मिस्टर दिग्विजय गौरव, मेरी दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं, हम्म। अनन्या और अतुल्या उनके नाम हैं, वंडरफुल वंडरफुल। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. हम्म। तो they just made it very sure कि I should get up early in the morning and राइट। I should write my poetry हम्म। at least 1 to 2 hours, and I राइट। have to devote that हम्म। much time, हम्म। because after that I was not able to find a single minute for myself, because from एब्सोल्युटली यस। morning 5 to 11 in the night I'm totally packed schedule, मेरा बहुत tight हम्म। schedule रहता है. हम्म। तो this was like कि वुमेन को तो उनका वैसे भी support. सुपर पावर बनना पड़ता है, बिकॉज मदर ऑफ टू डॉटर्स, Yeah, वाइफ, देन डूइंग दिस, रनिंग योर स्कूल, एंड yeah, देन my ऑल। school, yes, सो अभी everything. ये आपने बिल्कुल सही चूज किया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आपकी लाइफ का जो ड्रीम है, आपने सुबह सुबह उसको स्टार्ट किया और आपकी फैमिली में Start. ने आपको उसको सपोर्ट करा। आप ये Yes, बताइए मुझे कि आपको, देखिए हर बंदे को जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस, अनुभव, इमोशंस होते हैं, बट हर बंदा किताब नहीं yes, लिखता है, राइट? yes. तो आपके आपकी बुक लिखने के पीछे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या था आपको? जब आप बैक में सोचते हैं, आप काफी सालों से सोच रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो Yes, बुक yes. लिखने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? सर, बुक लिखना, अ गुड राइटर इज फर्स्ट गुड रीडर. जी। तो उसको पढ़ना अच्छा आना चाहिए, अच्छी, हम्म। मैंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा है, दो आई जी। वाज ए साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, बट मेरा लिटरेचर में बहुत इंक्लिशन रहा है, शुरू से ही मैं हम्म। पढ़ती थी. हम्म। इवन व्हेन आई गो टू एनी लाइब्रेरी, लाइक मैं जब कॉलेज में थी या स्कूल में थी, तो हम्म। लाइब्रेरी में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं. हम्म। आपके कोर्स की बुक तो के अलावा और बहुत सारी बुक्स होती हैं. हम्म। तो मुझे लिटरेचर वाले उसमें ही विंग में पाया जाता था, मैं वहीं बैठ के किसी पोएट की या किसी हम्म। राइटर की, फ्रॉम लियो टॉल्स्टॉय टू रविंद्रनाथ टैगोर,
ओशो, एवरीबॉडी, मैं अच्छा। उनको सबको पढ़ा करती थी दैट हुँ, टाइम। तो हुँ, कुछ मुझे लगता था जो अपने हिसाब से आई जस्ट यूज्ड टू राइट डाउन, कि वंडरफुल। मुझे मैं लिखती थी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बुक या कभी मतलब प्लान था, लेकिन ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि कब करना है, क्या करना है। देयर वाज़ सब हुँ, वेयर इन माय सबकॉन्शियस माइंड कि अच्छा कुछ ऐसा बुक लिखें तो अच्छा रहेगा। राइट। तो लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था। देन सुमित्रा नंदन पंत एक बहुत ही महान कवि रहे जी, हैं। जी, जी, जी। सबने उनका नाम सुना होगा। उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो मुझे हमेशा से इंस्पायर करती रही हैं। बताइए। तो वो पंक्तियाँ हैं, वियोगी होगा पहला कवि, हुँ, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, हुँ, चुपचाप आँखों से निकल कर बही होगी कविता अनजान। वाह! मतलब कवि कवि वो है जिसके जो फीलिंग्स है वो आँखों से आँसुओं की तरह बह जाती हैं और वो कविता का रूप बन जाती हैं। जी, 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 तो वंडरफुल। मैंने भी अपनी उन फीलिंग्स को, उन आँसुओं में कुछ कलर मिला के शब्दों का रूप देने का प्रयास किया है। और हुँ, ये पोएट्री आपके सामने है। बिना पेन के आप नहीं लिख सकते हैं, ये मेरा मानना है। हुँ। देयर हैज़ टू बी सम इमोशन, एब्सोल्युटली यस। आपकी कविताओं समथिंग। पर आते हैं, पर मुझे इससे पहले एक रूमी का एक शेर याद आ रहा है, इंग्लिश में मुझे याद है कि उसमें लिखा होता है कि उसमें उन्होंने कहा था कि योर हार्ट नीड्स टू बी ब्रोकन अगेन एंड अगेन अंटिल इट ओपन्स अप। तो आई आपका डोंट दिल तब खुलता है जब वो बुरी तरह से टूट जाता है। टूट गया होता है। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो अब इस किताब के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जी, पुरानी रज़ाई एहसासों का सफ़र, राइट? जी। तो इस किताब के बारे में बताइए, इस किताब में किस टाइप की कविताएँ आपने लिखी हैं और वो कविताएँ किस प्रकार के रीडर दृष्टिकोण को से कंसंट्रेट करके पढ़नी आपने लिखी चाहिए। हैं? जी, बताइए। एक्चुअली माय बुक इज़ फॉर एवरीबॉडी। हुँ, फ्रॉम जैसे मेरी बेटी है, 8 साल की मेरी बेटी है, और माय मदर इन लॉ बोथ एन्जॉय द पोएम्स अच्छा, 8 वेरी साल मच। या तो 80 साल चलेगा। 80 साल से लेके हर एक व्यक्ति के लिए उसमें पोएट्री है, कुछ ना कुछ जी, मिलेगा उसको अपने लिए। जी, तो मैंने जैसे बताया ये सब इमोशंस के बारे में है, हुँ, एहसासों के बारे में है। जी, तो हर व्यक्ति एहसास तो रखता ही है, इमोशंस तो सबके होते हैं। हुँ, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ग नहीं है कि उनके लिए ही होगा, युवा वर्ग के लिए है या बच्चों के लिए है या फिर थोड़े हुँ, से प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी जी, के लिए है। विद फैमिली यू कैन एन्जॉय, एवरीबॉडी हुँ, कैन एन्जॉय दिस हुँ, 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 पोएट्री। बहुत अच्छी उसके अंदर लिखी है। इससे पहली कविता ही है पुरानी रज़ाई। हुँ, ये इसका टाइटल भी है बुक का। ये जी, कविता है जब एक बच्चा पहली बार अपनी माँ से दूर जाता है। जैसे जी। हम कभी हॉस्टल जाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो नहीं, वो मैंने वाली पढ़ी है किताब। ये आपकी कविता पढ़ी मैंने, थैंक बड़ा यू, अच्छा लगा थैंक पढ़ यू। के इसको। हाँ जी, तो बताइए। उसमें कनेक्ट करते हैं पेरेंट्स के साथ, माँ के साथ, स्पेशली बच्चे ज़्यादा रहते हैं घर में, जी, तो एक जी। स्पेशल बॉन्ड होता है माँ के साथ। हुँ, तो क्योंकि माँ ही एक बच्चे का पहला टीचर है, शिक्षिका हुँ, है जी, उसकी। जी, जी। तो उसमें बताया है कि माँ कैसे उसको अपनी विंटर्स का टाइम है तो रज़ाई में लेके सोती है उसको, हुँ, और कैसे उसको बच्चे को नर्चर करती है, वो वहीं बिठा के उसे पढ़ाई कराती है, वहीं खिलाती है, वो हुँ, नखरे करता है, वो झूठ-मूठ बहाने बना के सो भी जाता है, छुप जाता है उसमें। फिर वो हुँ, उसको मनाती है जब तक वो हुँ। मान नहीं जाता। तो बहुत सारी इमोशंस हैं, एक-एक पोएम के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। तो ये तो रज़ाई सिर्फ़ रज़ाई बच्चा नहीं तो हर बचती कोई है, अच्छा रज़ाई जो है ये आपकी पूरी जी। इमोशंस का एक वो बंडल बन जाती है एहसास जिसमें सारी इमोशंस का, यस, मेमोरीज़ और सारी बंडल है। फीलिंग्स कंबाइंड होती हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। यस, बड़े अच्छे तरीके से बताया मेमोरीज। आपने। यस। एक आपकी थैंक यू। किताब में मैंने देखा आंगन की चिड़िया करके एक आपका कविता है। अब आपकी 2 या बेटियाँ हैं, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, 14 जी, इयर्स, 7 अच्छा, इयर्स। ओके, तो ओके। अभी ये आंगन की चिड़िया मुझे देख के लगा कि मैंने पढ़ा नहीं है, बट ये आंगन की चिड़िया आप बेटियों के बारे में बात करना चाह रहे हैं? ये बेटियों के बारे में जो जी, बताइए। जैसे मैरिड वुमन हैं, माँ हुँ, से हुँ। दूर चली जाती हैं, तो आंगन की हाँ, चिड़िया है, माँ तेरे आंगन की चिड़िया अब नहीं हाँ। चहचहाती है। अरे माय गॉड! तो उसमें टचिंग। है कि माँ मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं आपकी आंगन की चिड़िया हूँ। जैसे माँ आंगन में मतलब शादी से पहले कोई लड़की होती है, जितना फ्रीली वो अपनी माँ के घर में होती है, चहचहाना मीन्स वो सब हरकतें वो कर पाती जी, 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 है जी। ना? जो शादी के बाद शायद उतना फ्रीडम नहीं होती। हुँ। तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो हुँ, एक उस हुँ। मैच्योरिटी का स्टेप उसकी लाइफ में आता है। ढलना पड़ता है उसको। बहुत सारे नए रिश्ते आते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सारी नई खुशियाँ भी मिलती हैं। हुँ। लेकिन वो जो चहचहाना है वो मायके के आंगन में ही छूट जाता है उसका। तो ये हुँ। उसी इमोशन को दिखाती हुई पोएट्री है। वंडरफुल। माँ तेरे आंगन की चिड़िया अब नहीं चहचहाती है। अमेजिंग, अमेजिग। तो जी। मैंने इंडेक्स देखा, आपने हर हर टाइप की कविता लिखी है इसके अंदर, अपने हाँ, माँ-बेटी के इसमें बारे में। हर माँ-बेटी के बारे में है और जीवन साथी के बारे में है, हुँ। दादा-दादी, नाना-नानी के बारे में है, अच्छा। बच्चों के बारे में है, बच्चों
बच्चों की शरारतों के बारे में है, दोस्तों के बारे में है, हर तरह की कविताएं इसके अंदर आपको तो देखने को आपने मिल सही बोला, ये किताब तो हर बंदे के लिए, हर पूरा पर्सन के लिए, फैमिली पैकेज बिकॉज है ये। हाँ, फैमिली पैकेज है, इट्स अ फैमिली। एवरीबडी इज कनेक्टेड विद द ह्यूमन बींग्स, चाहे वो किसी यस, रिश्ते से हो चाहे फ्रेंड से हो। तो आपने सारे रिश्तों के अंदर जो एहसास होते हैं, एहसास उसने होते हैं उन एहसासों को आपने इस किताब में संजो कर डाल दिया है। डेफिनेटली। और वो एहसास जब डाले हैं आपने, तो आपने खुद की फीलिंग्स के साथ उसको लिखा है। तो मैंने एक कविता पढ़ी, उसके अंदर मैं पढ़ते ही मुझे टचिंग फील हुआ कि यस, जैसे मैं हॉस्टल में जा रहा हूँ, माँ से बोल रहा हूँ रजाई दे दो, उस रजाई में क्या क्या है। तो काफी अच्छा लिखा आपने। तो अब बात करते हैं आपकी। आपने किताब के बारे में बताया कि आपकी किताब आपने लिखी, पब्लिश खुद करी। आपने मुझे बताया इंटरव्यू रिकॉर्डिंग से पहले कि आपने लिखा, पब्लिश करा, फॉर्मेट, प्रूफ रीड सब करा, और बेस्ट सेलर पे लेके चले गए इसको आप। तो मुझे ना आपसे ये जानना है अभी कि जो अभी आपके सामने देखने वाले लोग हैं, इस रिकॉर्डिंग को जो भी देख रहे हैं, उनके जी। दिमाग में भी चलता होगा कि मुझे भी किताब लिखनी है, बट मैं कैसे पब्लिश करूंगा। सीमा जी ने कर लिया है, तो क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे कि पहले तो आप मुझे अपनी थोड़ी यात्रा बताइए कि लिखना, फिर पब्लिश करना, उसके बाद आप उसको बेस्ट लेवल लेके जाना, कोर्स आपने ज्वाइन किया, कम्युनिटी आपने देखा, तो ये सब जर्नी के अंदर क्या क्या पड़ाव आपके आए, और उन पड़ावों को आपने कैसे पार किया, और अल्टीमेटली आप इंडिया में नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर बन के अपने कविता की कैटेगरी में जी। अपने स्थान पाया है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। जी। राइटिंग के बारे में जैसे आपने पहले पूछा, हम्म। राइटिंग पार्ट वाज़ नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि हम्म। जो एक राइटर है उसको मालूम है कि लिखना उसको आता जी। है। जी। बट लिखना और इफेक्टिव वे से लिखना दोनों में बहुत फ़र्क है। जी। ताकि आपके जो पाठक हैं वो आपसे कैसे कनेक्ट हो जाएँगे। अगर हम्म। आपका वो टच नहीं कर कनेक्ट नहीं कर पाएँगे तो डेफिनिटली दे विल नॉट गो थ्रू योर बुक। करेक्ट। तो दोनों में डिफरेंस है। तो लिखना तो आता था कि लिखना है, बट उसको प्रेज़ेंट कैसे करना है डेफिनिटली मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म से मिला। हम्म। मैं काफ़ी सालों से लिख रही थी, ये मेरी 3rd बुक है। मैंने 2 हम्म। बुक्स पहले लिखी हैं लेकिन वो पब्लिश नहीं की। हम्म। देन मैंने आपसे बताया कि मैंने खुद को एक चैलेंज दिया कि क्या मैं खुद से पब्लिश कर पाऊँगी? सो आई वाज़ लुकिंग ऑन इंटरनेट कि कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मुझे दिख जाए कि जिससे मैं अपने आप सब कुछ कर, बिकॉज़ आई वांट अ कंट्रोल, आई एम जस्ट कि आई एम अ सेल्फ मास्टर कि मुझे हम्म। अपना मास्टर खुद बनना है, मुझे किसी और पे डिपेंड नहीं करना है। जी। 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 सो आई वाज़ लुकिंग कि कुछ ऐसा मिल जाए। तो हम्म। वन फाइन डे आई जस्ट गो थ्रू योर वेबिनार, इमीडिएटली आई जॉइन्ड। हम्म। जॉइन तो कर लिया, बट मुझे फिर लगा अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड हम्म। आई लेफ्ट इट। द हम्म। होल दिसंबर मैंने कुछ नहीं किया, हम्म। जनवरी में भी मैंने कुछ नहीं किया। देन माय हम्म। फैमिली, माय हस्बैंड, ही पुश्ड मी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये जॉइन किया आपने, यू लेफ्ट एवरीथिंग, 2 बुक्स पहले भी लिखी हैं तो हम्म। उन्हीं को कर लो, लिखा तो है पहले। मैंने कहा नहीं, करना है तो फिर नया करना है विद अ चैलेंज कि ओ। ये नया करेंगे और पोएट्री ही हम्म। करनी है मुझे। हम्म। देन एक बड़ा चैलेंज हो गया मेरे लिए कि एक तो पोएट्री, हिंदी पोएट्री, और वो भी विदिन 30 डेज और लेस देन 30 डेज मुझे ये सब करना है। एक बात बोलूं आपको, जी। आपने, मैंने तो सिर्फ एक रास्ता दिखाया था कि 30 डेज में लिख सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। आपने उस, काफी लोग उसको लिटरली चैलेंज लेके चलते हैं, आप उनमें से एक हैं कि आपने कहा, नहीं। सोम ने कहा कि 30 डेज में लिख सकते हैं, मैंने लिखी हुई हैं, तो आपने उसको एज ए चैलेंज लिया विद ए नेवर गिव अप एटीट्यूड। सो आई सल्यूट टू यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच। टेकिंग दिस एज ए चैलेंज, बिकॉज you, the people like you give inspiration to the people, that those who are naysayers, those who are thinking that कि ये नहीं हो सकता, तो आप जैसे लोग उनको प्रेरणा देते हैं कि यस हो सकता है ये। तो बताइए I आप। always believe, sir, कि impossible, there is nothing a word na like impossible. Everything is possible. इवन वर्ड So इम्पॉसिबल इज आई एम as पॉसिबल। self says I am possible. Yes. हम्म। So मैंने भी सोचा कि ओके, ये चैलेंज कर लिया है, देन हम्म। लेट्स फाइनलाइज अ टारगेट। तो हम्म। टारगेट करना बड़ा जरूरी है। अगर जी। आपका जी। जी। टारगेट नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर देन यू विल गो इनटू प्रोक्रेस्टिनेशन एंड अदर थिंग्स की नहीं हो रहा है, इनकंसिस्टेंसी, ये सब आ जाता है उसके अंदर। हम्म। तो मैंने कहा कि मुझे ठीक है, मैं एक फीमेल हूँ और अभी इंटरनेशनल विमेंस डे आ रहा है, जी। लेट्स फाइनलाइज माय डेट 8th मार्च, मुझे इसको पब्लिश करना है। एंड आई हैड नो क्लू हम्म। अप टू एंड ऑफ जनवरी की क्या करना है मुझे। अच्छा। ओके। आई वाज जस्ट अटेंडिंग द सेमिनार्स, आपका जो वीकली जो सेशन होता है, आई वाज अटेंडिंग। हम्म। एंड उसमें भी मेरा जो बेस मेन पार्ट था वो था क्यू एंड ए सेक्शन। अच्छा। क्यू एंड ए करेक्ट। सेशन में दो आई वाज नॉट हैविंग सो मच क्वेरीज और क्वेश्चंस कि मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था कि करना क्या है, बट आई हम्म। वाज लिसनिंग टू अदर्स कि लोग हम्म। क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं। तो आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग हम्म। वेरी कूलली कामली, हम्म। जैसे लास्ट बेंच पे कोई बैठ जाता है और वो सब देखता कि पिक्चर में क्या चल रहा है। सो आई वाज हम्म। ऑब्जर्विंग लाइक दैट द हम्म। होल मंथ। आई ऑब्जर्व, देन आई ओपन योर कोर्स। जो वन हम्म। वीक का कोर्स था वो मैंने एक दिन में कर डाला पूरा। उसको हम्म। देखा फटाफट से एंड आई मेड माय नोट्स कि ओके। ओके इसमें ये है पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है। एंड जो मेन एएफएच कम्युनिटी है दैट हेल्प्ड अ लॉट।
इसको बहुत फास्ट मोड में लाने के लिए बुक को, दैट AFH कम्युनिटी हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, पुराने राइटर्स हैं, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल. आप उनसे पूछते हैं तो दे जस्ट इमीडिएटली टेल यू कि दिस एंड दैट, एंड आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है उसमें, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट. तो मुझे वो मिला, मैंने पर ये काफी लोग को बताइए, अप्रोच आपने किया कि 8 ये कैसे मार्च वो अपना एक कैसे. डेट रखा, आपने लिखना कब शुरू किया? अपनी कविता की किताब को कब स्टार्ट किया, और आपने एग्जैक्टली कितने दिनों में आपने राइटिंग करा, फिर आपने प्रूफ रीडिंग खुद करा, एडिटिंग टू बी करा? वेरी ऑनेस्ट, मेरा जनवरी के अंदर सिर्फ 2 या 3 पोएम्स लिखा हुआ था. अच्छा. पूरा जनवरी के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा था. उसके बाद फेब आ गया तो मुझे घर पे भी बोल रहे थे तुम्हें लिखनी है, आर यू सीरियस? मैंने कहा हाँ हाँ कर लूंगी, कोई बात नहीं. तो अभी 8 मार्च 25 फेब तक भी मेरा मतलब 70 to 80% राइटिंग हुआ था. वो भी फर्स्ट मेरा जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो भी ढंग से नहीं हुआ था. 70 to 80%. तो मैंने कहा नहीं, डेट तो डाल दिया. देन आई वर्क डे एंड नाइट. विद इन आई थिंक 10 days मैंने बहुत काम किया उसके ऊपर, और मैंने सारी पोएम्स लिखी सुबह उठ के, और शाम तक उसको 2-3 बार करके पूरा फाइनलाइज किया, जस्ट टू चेक कि क्या पोइट्री भी लिखी जा सकती है या नहीं लिखी जा सकती है. दैट वाज माय मेन चैलेंज फॉर माई सेल्फ, not for others, because I'm a kind of person who gives challenges to myself कि okay, let's try this, can you do this, okay then what next. So I'm that kind of person. तो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि पोएट्री करनी है, और वो भी आपको 10 days के अंदर पूरा करना है. कर पाओगे? चलो करके दिखाओ. तो मैंने किया फिर वो. और इट्स नॉट अबाउट ओनली योर कंटेंट ऑफ बुक, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, लाइक उसका इंट्रोडक्शन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, कंक्लूजन्स होते हैं, एंड फॉर्मेटिंग, उसको कैसे पब्लिश करना है, बहुत सारी चीजें टेक्निकली, कुछ मुझे चीजें, क्योंकि मैं टेक्निकल पर्सन हूँ तो जल्दी मेरे लिए था वो सब. फिर भी हर्डल्स आए, लेकिन डेडिकेटेडली किया उसको, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे, नोट्स बना लिए थे. तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा कि नोट्स बना लेना, और फटाफट जो भी प्रॉब्लम आई तो नोट्स को देखा कि ये अच्छा इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना आपने है, एग्जाम फटाफट. की तरह लिया इसको, वीडियोस देखे, जैसे क्लासरूम में जाते हैं, वीडियो देखा, नोट्स करते गए, दोबारा ना देखना पड़े, और वो उन नोट्स टीचर को हूँ रिवाइज कर. तो शायद वो वाला रहा बीच में ना, इम्बाइब्ड जी. है वो चीज तो कि ओके ऐसे करना है. वीडियोस देख के आपको पूरा, आई मीन आपने कभी पहले बुक पब्लिश नहीं किया था, राइट? ना, नेवर तो नेवर. वीडियोस देख के आपको लगा कि लाइक आप खुद से आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आया आपको हाँ वीडियो देख के बिल्कुल, पूरा? पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा ये तो मैं कर ही लूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने वो किया फिर, हम्म. और करके देन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे को मैंने इसको लॉन्च कर दिया, एंड 11th ऑफ मार्च को मैंने इसको पब्लिसाइज किया कि ओके दिस इज माय बुक एंड आई हैव पब्लिश्ड. एंड आई थिंक सेम डे, विद इन फ्यू आवर्स, माय बुक गॉट number 1 bestseller tag also. इन And अमेजन many इंडिया. people, yes, on Amazon India, and many people liked it, and I got so many reviews from unknown people also, and they were just appreciating each and every poetry and the feelings, और जो भी उसके अंदर था, because everybody was able to connect to these जी poetries. जी जी जी. So at some point in their lives maybe they might have touched to them, and they were just saying कि it's good. एक दो हमारे AFH में से भी हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की, and they said कि they had tears in their eyes when they read those poems. तो that was a biggest compliment for an author कि कोई पढ़ के उनको रो पड़ा तो वो मेरे लिए मैंने बहुत इसको थोड़ा सा अच्छा था. पढ़ा, और इससे Yes. पहले कि आंसू आते मैंने रोक दिया उसको, क्योंकि Oh my God. मुझे लग रहा था कि काफी टचिंग है, तो मैंने कहा इसको आराम से पढ़ते हैं. तो रियली Yes, आपकी yes. कविताओं में काफी एक एहसास है, जो कि आप बोल रहे हैं ना, पुरानी It's रजाई, a depth, एहसासों का very सफर. very deep, and उसमें वही है कि without pain, I just conclude this कि without pain लिखना संभव नहीं है किसी के जी लिए जी भी, जी जी. especially करेक्ट. poetry or something वंडरफुल. similar to it. करेक्ट Yes. करेक्ट करेक्ट. ग्रेट. सो आपकी बुक के बारे में सुना, आपकी जर्नी के बारे में सुना, तो आपको इस राइटिंग के पूरे प्रोसेस के दौरान अपने अंदर कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशंस या कुछ ऐसे फीलिंग्स आई, जैसे कुछ एम्पावरमेंट, या हर एक बंदे को जब कुछ गोल अचीव करता है तो उसको अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस और ब्रेक थ्रूज नजर आते हैं, तो आपको अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन महसूस हुए? व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू ओवरकेम एंड व्हिच मेड यू फील लाइक यू हैव डन विक्ट्री ओवर समथिंग? बताइए उसके बारे में थोड़ा सा. Everybody has achieved in their lives something, or a little bit, or many things they might have achieved, but every success brings some challenges also, like अच्छा आपने ये set कर दिया है, अब what next?
ऐसा होता है। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि अच्छा ये मैंने बुक पब्लिश किया and many people liked it. Okay, this is something called achievement. So with this achievement एक feeling आया कि okay, I should not stop now here, I should move ahead and I should not stop my writings because मैं एक ऐसा person हूँ जो कहीं कुछ भी लिख देता है और इधर उधर फेंक देता है. It is my better half only. For many years he is collecting all the stuff. तो ही इज द बेसिक मेन पुशी पर्सन की अरे ये फेंक दिया तुमने, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया. एंड ही वुड कलेक्ट ऑल दोस राइटिंग्स एंड ही हैज मेड अ फाइल आल्सो कि ये आपने तब लिखा था, तब लिखा था. तो मेरे वो बहुत काम आया अभी मैं पोएट्री एक के चीज टाइम. बोलना चाहूंगा यहाँ पे आपको। जी. अभी तक सबने सुना होगा कि हर हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का पीछे हाथ होता है। जी बट जी. आपसे मैं मतलब पहली बार सुन रहा हूँ कि एक औरत जो है अपने अपने बेटर अपने सेकंड हाफ को जो है उसके बारे में इतना बोल रहे हैं कि उनकी वजह से सारा कुछ हुआ है। तो ये शो डेफिनेटली कर सर, ये डेफिनेटली. शो करता है कि आप रियली ग्रेटफुल हैं, अप्रिशिएट करते हैं लोगों की कंट्रीब्यूशन का। सो वो Obviously सब है। even my kids also, they are also very patient कि मम्मा कुछ कर रही हैं. It's a collective effort actually, it's not only my book I would say it's my family's book. वंडरफुल। सबका. Yes, when I was very busy क्योंकि मेरा स्कूल भी है and other engagements also, मेरे पास कोचिंग भी, शाम को मेरे पास बच्चे आते हैं. So I'm very busy और मेरे अपने बच्चे भी, उनको पढ़ाना है, सब कुछ देखना है. Being a teacher मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. घर का तो वंडरफुल। होता ही है लेडी का. जी जी Then जी my जी। husband initially he just started कि okay you just type it in Google Docs. He find out many things for me, ready made कि आप ये कीजिए वो कीजिए. तो इतना इतना easy, इतना fast और इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए ये भी करना. अब अगर वो भी आपका कह सकते हैं फैमिली. कि आई एम हस्बैंड ऑफ ए बेस्ट सेलिंग ऑथर एट टाइम एज Yeah. He is very much happy, he is more than happy यस। कि अच्छा बुक छपा है, बिकॉज ये वंडरफुल। उनका ड्रीम था बेसिकली. जी टू जी बी जी। वेरी ऑनेस्ट कि मेरा बुक वंडरफुल। आए. और एक मैं वंडरफुल। ही थी जो टाल मटोल कर रहे थे, नहीं मुझे नहीं करना अभी, नहीं थोड़ा टाइम बाद करते हैं काइंड ऑफ हम्म थिंग्स, बिकॉज आई एम वेरी लेजी काइंड ऑफ पर्सन इन थिंग कि हो हम्म। जाएगा चलो ठीक है. बट व्हेन आई डिसाइड कि ओके करना है, देन फिर मैंने किया उसको, देन आई डिड इट एंड ऑन द राइट टाइम. चलिए अब बात करते हैं, आप उन लोगों से बात कीजिए स्क्रीन पर देखकर कि जो लोग सोच रहे हैं कि किताब मैं भी लिखना चाहता हूँ, चाहे फिक्शन है, चाहे नॉन फिक्शन है, चाहे नॉन कविता फिक्शन. है, बट यस. मैं कैसे लिखूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शायद उस लायक नहीं हूँ, मैं सेल्फ डाउट कर रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। क्या आप एक फर्स्ट टाइम ऑथर से बात कर सकते हैं अभी, उनको बता सकते हैं कि वो कैसे अपनी जर्नी को शुरू करें और कैसे उसको एक लॉजिकल पड़ाव तक लेके जाएं, प्लीज। यस सर. पहली बात तो टाइम की बात ना, हम्म एवरीबडी हैज 24 आवर्स ओनली. हम्म तो उन्हीं का 24 आवर्स का ही आपको, यू हैव टू मेक बेस्ट आउट ऑफ दैट टाइम. तो हम्म। टाइम नहीं है वाली चीज कभी भी नहीं होती है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव टाइम. ओह। अगर हम अपने ध्यान से देखेंगे तो हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं फालतू जी चीजों में. लाइक जी। एवरीबडी नाउ डेज इज सो मच ग्लूड टू स्क्रीन टाइम ना. आप अपना मोबाइल फोन ही है या स्क्रीन है, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट. वी नेवर मेक अ शेड्यूल कि आज मुझे ये काम करना है या मैं कल करना है, या वी डू नॉट सेट अ टारगेट फॉर दैट. हम्म दोज हु आर इनटू राइटिंग्स, अगर किसी को स्लाइटेस्ट भी लगता है कि ही इज अ गुड राइटर, ही कैन राइट अ गुड बुक और अ बुक, तो ही शुड ट्राई. जस्ट ट्रस्ट, हैव ट्रस्ट ऑन हिज कैपेबिलिटीज, हिज ऑन स्किल्स. आप अगर अपने ऊपर विश्वास रखते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो आप वाकई में कर सकते हैं. ऐसा जी। कुछ भी नहीं है कि जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं. हम्म तो have faith in yourself and the Almighty will help you always. So हम्म this is my mantra. First, you need to understand and realize your own capabilities, your own हम्म। skills. You have to be very much sure. Okay, this is I am, and these are my capabilities. I can do this. I can stretch out these things on myself. So वंडरफुल। it is very easy, and हम्म your family support is always very much needed. So हम्म I'm a lucky one who always having a very strong back on my side. हम्म And my kids, they were always constant motivation for me. Their love and their little gestures, like sometimes they would bring a small glass of water for me. Ki mama, okay, I need some water. So that just inspired me. Okay, they वंडरफुल। understand I'm on some journey and they are taking care of, and I have to finish these things. So वंडरफुल। these are the things I think कोई भी कर सकता है. It's not वंडरफुल। even difficult with the हम्म right kind of strategies, with the right kind of things, and you need to just understand yourself first. हम्म कि, what the idea should be very much clear into your mind. हम्म। If the idea is clear, nothing is impossible. एब्सोल्युटली।
Wonderful. Thank you so much for sharing your journey, sharing about your book, Thank you about so much, your sir. whole life. Wonderful. It was Thank great you. to have you. Now, could you just briefly talk about to the person who wants to publish and make it bestseller, what kind of support he can, in your experience, what kind of thing you got in the course and community and coaching sessions, Yeah. a little very briefly, so that they can get a sense of yes, this is the platform they should also join in as you joined. Like I earlier said, I was into writing for many years, but I Mm, could not find the right platform. mm, See, a right platform means a lot. mm. If you get a right platform, then half of the journey is already achieved. Yes. So your course provided a right platform to the authors, Mm, those who like some people they might have spent a lot of money on other platforms or to conventional publication, and they might have not very interested to try something new mm, or some similar mm. kind of things. Right. But I would recommend everybody ki if you have a little of interest in writing and publishing a book, Mm, this is the right platform and you should opt and go for it, because it is not only the platform, a big community, many helping hands you will find, many mm, authors, many experienced people you will find. And the best part is your weekly sessions. mm, I think that is the constant motivation factor, mm, because sometimes we just feel let down, okay ab mujhse nahi hoga, yeah, I mm, cannot do it. So mm, the inner session or this WICC sessions, they mm, give you constant motivation and support. mm, Support you get and motivation you get, then I think it's not a thing which you cannot achieve. So you can mm. achieve, and in a very good way you can achieve all Wonderful. the thing. You just need to have faith on Mm, your skills, and absolutely. you need to choose the right kind of platform, like you have already provided to many people, Wonderful. and you have changed the lives of many people, me also. Yeah. Thank you so much. Thank you thank so much. thank Wonderful. you, sir. So it was great to have you on the show. Now let me just quickly talk to the watchers. Watchers of this video, if you think that you have some writers hidden in you, which needs to come out to the world and inspire the world, then there is a link below this video. This is in the description, which will lead to a free training, and that free training will help you to understand about the Author Freedom platform, Author Freedom model, Author Freedom Hubs platform, and you can jump the bandwagon into it. And if you are someone, and of course you are someone who has feelings, who have heart, and who want to connect with the family members at a deeper level, all relationship you want to experience, then आपको पढ़ना पड़ेगा पुरानी रज़ाई एहसासों का सफ़र। इस thank you so किताब का much, sir. लिंक भी मैंने Thank you नीचे so much. किताब इसके नीचे भी दिया है मैंने लिंक, तो आप Mm. जो देख रहे हैं उसको लिंक को क्लिक कीजिए, आपको वो किताब मिल जाएगा, तो read that book. book So padhiye. now, yeah, with that, we are ending the session. Before I end the session, Thank you. I ask Seema, you to give a parting piece of advice to anybody who is watching this interview. Yes. Oh, like every human has some, I think, dreams. Hmm. Dreams or some kind of, they have aim. Hmm. Okay, this is my target, or I want to be like this, I want to be like that, or I Hmm. want to achieve something in my life. Hmm. Hmm. So I would say have faith in yourself first, Hmm. Hmm. and do it full intention, Hmm. with positive intention. Hmm. Have faith in yourself, your capabilities, and just give your 100% and Yes. leave everything, rest everything you just leave to God. So Absolutely. you would see that whatever you have thought to get, any job, any aim, or anything in your life, it is very much near to you, and it is for you. Because Hmm. I read somewhere na, like Mr. Harivansh Rai Bachchan once Hmm. said कि Hmm. मन का हो तो बहुत अच्छा, और मन का ना हो तो वो और भी अच्छा. तो मतलब Oh, कि डेस्टिनी जो है वो आपको कुछ ऐसा कराने के लिए जा रही है जो आपने नहीं सोचा है. तो अगर आपके मन का wonderful. हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं Wonderful. है तो बहुत अच्छा है. तो Wonderful. आई Wonderful. बिलीव्ड इन दैट कि Wonderful. मैंने बहुत Wonderful. सारी चीजें छोड़ी हैं लाइफ के अंदर, Hmm. जस्ट फॉर द प्रायोरिटी ऑफ माय फैमिली, कि मुझे अपनी Hmm. फैमिली को प्रायोरिटी देना था. बहुत चीजें छोड़ी हैं, लाइक माय PhD, माय जॉब्स, Hmm. many jobs, and Hmm. number of jobs I left my career, my music career, my teaching career, everything I left. So Hmm. but I am not regretting for a Hmm. single thing. I'm very happy and very blessed, because the Hmm. kind of family support and love I have got, and from my friends and family, which it is Hmm. unmatchable, so Wonderful. you cannot compare it. Wonderful. So just have faith in God and believe in your capabilities. That's it. Absolutely, yes. What a Thank wonderful way of ending this interview, because thank man you. ka ho to acha,
मन का ना हो तो और भी अच्छा. और भी अच्छा. What a deep thought. Yes. So life sometimes have a different destination for you which you may not have Yes. thought of. तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके सीमा. So Same here, sir. thank you Same so here. much and Thank you. take care. Bye bye. Bye bye.